Welcome to all of you. This is my first video related to class 11 business studies chapter number 2, that is various forms of business organization. Student, in the previous video we have learned about various topics related to chapter number 1, that is various factors must be considered before starting an enterprise. I hope you have learned all the topic related to the chapter number 1. You have prepared your notes. If you have any doubt, then please ask me in live stream classes. One more thing, student, at the starting of this class, at the starting of or introductory class of business studies, I have told you that CBSE reduced up to 30% of course this year due to the COVID pandemic. So students, some topics must be reduced, must be deleted from this year's syllabus, this year course. And I have told you that whenever I start new chapter, I will tell you about the topics that must be deleted by CBSE this year. So student, the topic number 2.7 of this chapter, topic number 2.7, that is choice of form of business organization. Topic number 2.7 must uh, have been omitted this year, have been deleted this year course, have been deleted from this year course. Is it clear? So topic number 2.7 we will not read. Is it clear? Now we are moving this topic, that is chapter number 2, various form of business organization. Is it clear? We are learning about the various chapter number 2, that is various form of business organization. So student, in this chapter we will learn about the various form of organization. We will learn about the various features, merits and limitation of different form of business organization. As I have already told in the chapter number 1, when we are reading about the various factor of production, there are total 5 form of business organization we can choose before starting any organization. So first we learn about the various features, merits and limitation of various form of business organization which are available for all of us. So before finalizing any form of business organization, we must consider every form features, merit and limitation. The third topic, distinguish between various form of uh, organization. And the last topic, this is not the part of your course this year. Okay student, introduction part I am reading here. If one is planning to start a business or is interested in expanding an existing one, an important decision related to the choice of the form of business organization, the most appropriate form is determined by weighing the advantages and disadvantages of each type of organization against one's own requirements. Various form of business organization from which one can choose the right one include: first one is sole proprietorship, second one is joint into family business, and the third one is partnership, fourth one is cooperative society, and the fifth one is joint stock company. दैट मीन्स यदि हम कोई प्राइवेट सेक्टर में यदि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें गवर्नमेंट वेरियस फॉर्म ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे, लेकिन यदि प्राइवेट सेक्टर में हम यदि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास 5 फॉर्म है। दैट मीन्स हमें डेफिनेटली कोई ना कोई फॉर्म ऑप्ट करना पड़ेगा। बिजनेस को ऑपरेट करना है, स्टार्ट करने से पहले हमें डेफिनेटली एक फॉर्म चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर बिजनेस की अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। तो उन लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने से पहले हमें इन फॉर्म्स को देखना पड़ेगा
उनके मेरिट्स डीमेरिट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल फाइनलाइज अवर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप, फॉर्म ऑफ बिजनेस। और जैसा हम डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम हमारी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करेंगे। Let us start our discussion with sole proprietorship, the simplest form of business organization, and then move to analyze more complex form of organization. तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके मेरिट डीमेरिट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे वर्ड है सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर इज रिलेटेड टू बेसिकली ओनर, ओनर से रिलेटेड होता है, और सोल मीन्स ओनली, सिंगल ओनर है। दैट मीन्स यदि मेरे फादर ने कोई शॉप स्टार्ट करी और वो उसके सिंगल ओनर है और ऑल एक्टिविटीज आर डन और मैनेज बाय हिमसेल्फ, तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो हमें पता पड़ता आइडिया होता जाएगा कौन सा फॉर्म कौन सा है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। डू यू ऑफन गो इन द इवनिंग to buy registers, pen, chart paper, etc. from a small neighborhood stationery store? Well, in all probability, in the course of your transaction, you have interacted with the sole proprietor. So, what is the definition of sole proprietor? Sole proprietorship is a popular form of business organization and is the most suitable form of small businesses, especially in their initial year of operation. Sole proprietorship refers to a form of business organization which is owned, managed, controlled by an individual who is the recipient of all profit and bearer of all risk. दैट मीन्स यदि बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट होता है तो सारा प्रॉफिट उसका होता है, यदि लॉसेस होते हैं तो उसका होगा लॉसेस। और ये बिजनेस जो ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय सिंगल ओनर, जो दैट मीन्स जो बिजनेस की ऑल एक्टिविटीज है वो सारी एक सिंगल ओनर के द्वारा मैनेज की जाती है, कंट्रोल की जाती है। तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे 3 कीवर्ड्स है जो हर फॉर्म में यूज होंगे, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। यहाँ पे ओन एंड मैनेज एंड कंट्रोल का जो टास्क है वो कौन डन करता है? एन इंडिविजुअल, दैट मीन्स ए सिंगल ओनर, सिंगल पर्सन। तो ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में फॉल करेगा। दिस इज एविडेंट, this is the definition of the sole proprietorship form of business. This is evident from the term itself. The word sole implies only and the proprietor refers to the owner. Hence, a sole proprietor is the one who is the only owner of a business. Is it clear? Sole proprietor is the one who is the only owner of a business. This form of business is particularly common in areas of personalized service such as beauty parlors, hair salon, small scale activities like running a retail shop in a locality. तो देखेंगे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये सोल प्रोप्राइटर है, बेसिकली ये फॉर्म जो स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल स्केल वेरी स्मॉल लेवल पे जो बिजनेस है उनके लिए सुटेबल रहता है, क्योंकि एक पर्सन ऑल एक्टिविटीज को मैनेज कर सकता है। वो उसका रॉ मटेरियल मंगवाना है वो भी मैनेज कर सकता है। यदि सपोज कीजिए वो फिनिश गुड को सेल कर रहा है जस्ट लाइक होलसेल शॉप, रिटेल शॉप, तो वो वहाँ मैनेज कर सकता है। उसके अलावा अकाउंट्स भी वो हो सकता है घर पे आके या वहीं की वहीं उसको मैनेज कर रहा है। उसके अलावा लीगल, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी वो सब वो खुद मैनेज कर रहा है। तो दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप। इज इट क्लियर? So student, first of all we will learn about the features of sole proprietorship. जब तक हमें फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स के बारे में नहीं आइडिया होगा तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। जब आगे हम जो 5 फॉर्म्स है उनमें कंपैरिजन किस बेसिस पे करेंगे वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, और हमारे लिए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन सब से के लिए हमें हर फॉर्म के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करना होगा। फर्स्ट वन इज अ फीचर, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। दैट मीन्स स्टार्ट करना किसी बिजनेस को और क्लोज करना, हम उसके बारे में यहाँ पे रीड कर रहे हैं। देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप।
Hardly any legal formality is required to start a sole proprietor business, though in some cases one may require a license. Closure of business can also done easily. जैसे जैसे आप वेरियस फॉर्म्स पढ़ेंगे आप देखेंगे कि जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से कंट्रोल्ड है। कंपनीज के लिए जो सारा वर्क है हमें कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग करना है, कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकॉर्डिंग करना है। तो हर फॉर्म अलग लॉ के द्वारा, अलग एक्ट के द्वारा कंट्रोल है। यहाँ पे हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, कोई जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो भी सबसे कम है, सबसे कम लीगल फॉर्मेलिटीज है, ऑलमोस्ट ना के बराबर लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है। तो क्लोजर भी हमारा हम इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा बिजनेस को क्लोजर करने के लिए। तो दैट मीन्स यदि हम जो फॉर्मेशन और की मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, मिनिमम हेडेक चाहेंगे, तो उस केस में ये सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। thus there is ease in formation as well as closure of this type of business. Is it clear? Second one is liability. Student, in the previous chapter I have already told about the meaning of liability. Liability means payment that is made by a business or a person. तो यहाँ पे हम बात करें लाइबिलिटी की, तो कहने का मतलब है पेमेंट करना है। यहाँ पे हम देखेंगे की वर्ड है जो यूज किया गया है, सोल प्रोप्राइटर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी बिजनेस में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, किसी बिजनेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो बेसिकली इस टॉपिक को समझने के लिए आपको लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी मीनिंग तो होता है जितना आपके पास में बिजनेस में फंड है आप उसी फंड से पेमेंट करेंगे। जो भी आपको जिनका पेमेंट करना है, हो सकता है वो आपके बिजनेस के क्रेडिटर्स हो सकता है आपका बैंक बिजनेस लोन हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास यदि बिजनेस में फंड है तो आप पेमेंट करेंगे। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स यदि आपके पास बिजनेस में फंड है तो आप उन फंड से पेमेंट करेंगे, और यदि आप बिजनेस में फंड नहीं है तो उस केस में आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए एक मेरा मकान है और मैं उसमें रह रही हूँ, लेकिन मैं अपना पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ बिजनेस की लाइबिलिटीज का, तो मुझे वो जो हाउस है उसको भी सेल करना पड़ सकता है। तो दैट मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर्स have unlimited liability. This implies that the owner is personally responsible for the payment of debts in case of assets of business are not sufficient to meet all the debts. Is it clear? As such, the owner's personal possessions such as his personal car, other assets could be sold for repaying the debt. Suppose the total outside liability of XYZ dry cleaner a sole proprietorship firm are rupees 80,000. एक एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे। तो जो टोटल लाइबिलिटी है पेमेंट करने की वो 80,000 रुपीज है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन दैट मीन्स बंद करने के टाइम पे। बट इट असेट्स आर 60,000, जो टोटल उसकी असेट्स है वो 60,000 है। In such a situation, the proprietor will have to bring rupees 20,000 from her personal sources, even if she has to sell her personal property to repay the firm debts. Is it clear? तो सेकेंड थिंग जो हमने पढ़ी लाइबिलिटी, तो सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। दैट मीन्स यदि बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो सारा प्रॉफिट उसका है, और लॉसेस होंगे तो ऑल प्रॉफिट ऑल लॉसेस उसके खुद के होंगे। उसे किसी के साथ में वो डिवाइड नहीं कर सकता है, सारे लॉसेस सारे प्रॉफिट उसके खुद के हैं। The risk of failure of business is borne all along by the sole proprietor. However, if the business is successful, the proprietor enjoy all the benefit. He receive all the business profit, which become a direct reward for risk bearing. That means जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में सारा प्रॉफिट उसका है, और जितने भी लॉसेस होंगे सारा लॉस उसका है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल। कंट्रोल इज बेसिकली रिलेटेड टू द जो टोटल कंट्रोल है बिजनेस का, सारे फंक्शंस है उनको कंट्रोल, उनको मैनेज। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होगा,
एक ओनर जो सोल प्रोप्राइटर है वो कंट्रोल करेगा, वो दैट मीन्स जो कंट्रोलिंग राइट है वो डाइवर्ट नहीं होगा, वो किसी और पर्सन को हैंड ओवर नहीं कर सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। तो यहाँ पे कंट्रोल, द राइट टू रन ए बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजन, lies absolutely with the sole proprietor. He can carry out all his plans without any interference from others. That means कोई भी second person उसके work में interfere नहीं करेगा. Is it clear? Fifth one is no separate entity. That means uh, business and the person both are the same. Business and the person. सो स्टूडेंट यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं, नो सेपरेट एंटिटी। दैट मीन्स जो बिजनेस है और वो जो पर्सन है वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बोथ आर द सेम पर्सन। आप देखेंगे जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में देखेंगे, कॉपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस में देखेंगे, तो जो इंडिविजुअल है जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए हैं वो अपने आप में डिफरेंट पर्सन है और बिजनेस अलग है। एग्जाम्पल ले, यदि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है, और हम बात करें मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, तो वो बिजनेस से डिफरेंट है। बिजनेस मुकेश अंबानी को अपना पर्सनल जो लाइबिलिटीज है उनको पे करना पड़ता है, उनको अपने पर्सनल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने पर्सनल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे नो सेपरेट एंटिटी, दैट मीन्स बोथ आर द सेम इन द आईज ऑफ द लॉ। No distinction is made between the sole trader and his business, as business did not have an identity separate from the owner. The owner is therefore the held responsible for all the activities of the business. Is it clear? नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। दैट मीन्स सपोज कीजिए सोल प्रोप्राइटर जो सिंगल ऑनर है उसको डेथ हो गई है, उसको कोई इंसैनिटी हो गई है, कोई इम्प्रिजनमेंट हो गया है, या फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उस केस में वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता है, वो बिजनेस वहीं पे क्लोज हो जाएगा। आगे उसको कंटिन्यू करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। जैसे अदर बिजनेसेस में देखेंगे कि एक पर्सन की डेथ, इंसॉल्वेंसी से उस बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए जो फाउंडर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, धीरू भाई अंबानी है, दैट मीन्स फादर ऑफ मुकेश अंबानी, उनकी डेथ हो गई है प्रेजेंट में, लेकिन उस बिजनेस को मुकेश अंबानी ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अलावा उनके जो अनंत अंबानी वगैरह हैं, सन है, वो ऑपरेट करेंगे। तो किसी पर्सन के यहाँ पे लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी है। दैट मीन्स एक सिंगल पर्सन ऑपरेट कर रहा होता है उस बिजनेस को, तो डेफिनेटली यदि उसे कुछ भी होता है तो वो बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज ऑन and controlled by one person, therefore death, insanity, imprisonment, physical ailment or bankruptcy of the sole proprietor will have a direct detrimental effect of the business and may even cause closure of the business. Is it clear? So these are the features of sole proprietorship. Is it clear? Now student, we are moving next topic, that is merit and demerit. Student, this video is over now. In the next video we will learn about the merit demerit of sole proprietorship. Is it clear? So your work related to this video is prepare your notes, and if learn these notes. If you have any doubt, then please ask me in live stream classes. Is it clear? So student, this video is over now.